آج کل ہر جگہ آپ نیوز میں ایکس پہ اور ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ لیکویڈیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ ایکسپلین کریں گے آپ کو کہ لیکویڈیٹی کیا ہے، لیکویڈیٹی کیسے میسر ہوتی ہے اور لیکویڈیٹی کا مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ ہے، اور اس کو سمجھ کے آپ کیسے فرنٹ رن مارکیٹ میں بن سکتے ہیں کہ آپ اگر اس چیز کو جان لے تو آپ کی یہ زندگی آسان کر سکتی ہے۔ آپ کو پورا مارکیٹ کا جو میکینزم ہے اور سائیکل ہے، کیونکہ یہ لیکویڈیٹی ڈریون ہے، تو اگر یہ کنسپٹ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس کو تھورولی گریسپ کر لے تو پھر مارکیٹ میں پریڈکشن کرنا یا مارکیٹ کو فورسی کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو ہم آج کے ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ لیکویڈیٹی کیا ہے، لیکویڈیٹی کیسے میسر ہوتی ہے، اور لیکویڈیٹی کا کرپٹو مارکیٹ یا دنیا کے جو فائنینشیل مارکیٹ ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہے، اور اس کو گریس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو لیٹس ڈگ ان۔ ابھی ہم ایکسپلین کریں گے کہ لیکویڈیٹی کیا ہے۔ لیکویڈیٹی اگر سمپل ورڈز میں آپ کو ایکسپلین کیا جائے تو لیکویڈیٹی اماؤنٹ آف منی اینڈ اکنامک سسٹم یا فائنینشیل سسٹم میں جتنا اماؤنٹ آف منی ایگزسٹ کرتی ہے گیون ٹائم پہ، اس کو ہم لیکویڈیٹی کہتے ہیں۔ دوسری اگر اس کو میں ایک ایگزامپل دے دوں تو لیکویڈیٹی بیسیکلی ایک فیول کا کام کر رہی ہے ایسٹ پرائز کے لیے۔ جتنا زیادہ لیکویڈیٹی ہوگی اتنا ایسٹ پرائز کرپٹو مارکیٹ S&P 500 اتنی تیزی سے اوپر جائیں گے، اور جتنا یہ کم ہوگی تو کم ہونے کی صورت میں یا تو اس کا ریس یا جو پیک ہے وہ پیک آ جائے گا یا پھر یہ نیچے گرنا شروع کر دیں گے۔ آپ فائنینشیل سسٹم کو ایک سوئمنگ پول کی طرح سمجھے جس کا ایک فرنٹ اینڈ ہے اور ایک بیک اینڈ پہ۔ اب جب پانی آتا ہے تو پہلے یہ فرنٹ اینڈ پہ آتا ہے اور پھر جا کے یہ بیک اینڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو جب بیک اینڈ پہ گورنمنٹ بانڈ یا گورنمنٹ سیکیورٹی ہوتے ہیں، جو ہی لیکویڈیٹی مارکیٹ میں انٹر ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ گورنمنٹ بانڈ اور سیکیورٹی میں انٹر ہوتی ہے، اور پھر سیکیورٹی اور گورنمنٹ بانڈ میں جب میکرو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی ہے اکانومی کی تو وہاں سے نکل کر یہ رسکی ایسٹ کرپٹو مارکیٹ اور اس میں نکلتی ہے۔ تو اس طرح جب لیکویڈیٹی پہلے مارکیٹ میں انجیکٹ ہوتی ہے تو اسی طرح یہ لیک کے ساتھ کرپٹو مارکیٹ یا جو کرپٹو ایسٹس ہے یہ لیک کے 3 منتھ لیک کے ساتھ سرچ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے یہ بانڈ اور گورنمنٹ سیکیورٹی میں انٹر ہوتی ہے، اور پھر اس کے مارکیٹ میکرو اکنامک کنڈیشن جو ہی بہتر ہو جاتا ہے تو وہ 3 منتھ لیک کے ساتھ انٹر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب میکرو اکنامک کنڈیشن ورس اپ ہوتی ہے تو پھر یہ 3 منتھ لیگ کے ساتھ نہیں نکلتی بلکہ انسٹنٹینیسلی ان ایسٹ سے نکلتی ہے۔ تو ہم ابھی ریسنٹلی دیکھا جو ٹرمپ ٹیرفس، اس میں یہ جو لیکویڈیٹی مارکیٹ سے ایک دم نکل گئی اور اس میں تمام سٹاک مارکیٹ اور BTC یہ سارے نیچے آ گئے۔ اب جو کرپٹو مارکیٹ ہے یہ ہائیلی سینسٹیو ہے لیکویڈیٹی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ جتنی زیادہ لیکویڈیٹی انٹر ہوتی اتنی تیزی کے ساتھ جو کرپٹو مارکیٹ ہے وہ سرچ کرتا ہے۔ کیونکہ لیکویڈیٹی ایک ٹرانزیکشن کے لیے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور ٹرانزیکشن والیوم اس سے بڑھ جاتی ہے، ٹرانزیکشن فیس کم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈیفائی ہے اس کی جو میکینزم ہے یہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ بل رن میں ہوتے ہیں، بل رن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ بل رن بیسیکلی لیکویڈیٹی اس 2 سال میں، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 ایئر کا سائیکل ہوتا ہے، پھر 2 سال لیکویڈیٹی انجیکٹ کرتا ہے مارکیٹ میں اور 2 سال لیکویڈیٹی مارکیٹ سے نکالتا ہے۔ تو وہ 2 سال ہمارے بل رن کے ہوتے ہیں اور 2 سال بیئر رن کے ہوتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے مارکیٹ میں اتنے زیادہ لوگ رسک ٹیکنگ کرتے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ اب لیکویڈیٹی کا کیا فائدہ ہے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایگزامپل میں سمجھا دیتا ہوں۔ کرپٹو مارکیٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ چارٹ نظر آ رہا ہے، جو BTC ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تو BTC میں 24 آور ٹریڈنگ والیوم جو ہے نا وہ آلموسٹ $25 بلین کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن میں $25 بلین کا بٹ کائن یا خریدے یا بیچے تو بٹ کائن کے پرائس پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ اس کے کمپیریزن میں آپ ایتھیریم دیکھیں تو ایتھیریم $15 بلین کی ٹریڈنگ والیوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے $25 بلین کا ٹریڈ کریں گے تو مارکیٹ تو ایتھیریم کے پرائس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، لیکن $15 بلین کے اوپر نہیں پڑے گا اگر ڈیلی آپ اس میں $15 بلین خریدے اور $15 بلین بیچے۔ اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں تو سولانہ ہے، سولانہ کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ آلموسٹ $3 to $4 بلین ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3000 کرپٹو کرنسیز ہے اور اس میں $1 بلین سے کم کی لیکویڈیٹی۔ اب یہ لیکویڈیٹی کیوں میٹر کرتی ہے کہ جو بڑے ویلز ہے وہ چھوٹے کائنز میں آتے ہیں، آپ اس کی پوری کی میکینزم کو وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے اگر BTC میں کوئی
$125 बिलियन से बड़ा ट्रेडर आता है तब इसके प्राइस पे इतना इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज ये इस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं जो मेन क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी अब आप मैयर कैसे कर सकते हैं, किस इंडिकेटर के थ्रू आप लिक्विडिटी मैयर कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी मैयर के दो ही मेन वो है, एक है ग्लोबल M2 मनी सप्लाई। ये ग्लोबल M2 मनी सप्लाई का मतलब ये है कि जो दुनिया के ओवरऑल जो मनी स्टॉक है, जो मनी अवेलेबल है, उसको ग्लोबल M2 कहते हैं। अब इसका जो इससे मैयर किया जा सकता है, लेकिन क्या इससे क्रिप्टो मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा अगर इसमें इंक्रीज आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी मनी स्टॉक्स है जो कि मूवेबल नहीं है, जो कि फिक्स्ड है, मतलब वो उस चीज़ से नहीं निकलती। तो अब हमारे लिए जो है ना वो एक ऐसा ग्लोबल M2 का एक इंडिकेटर होना चाहिए जो फ्लो में हो, जो हर वक्त फ्लो में हो और क्रिप्टो स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट उसका ज़्यादा हो। तो इसके लिए ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स GLI जो माइकल हॉल है उसने ये इंडेक्स बनाया है, जिसमें वो सिर्फ ये कह रहे कि ये ट्रैक ये बैंक लाइबिलिटी और कैश फ्लो ऑफ रियल वर्ल्ड, वही पैसा जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में आता है उसको वो इससे मैयर करता है। अब ये ज़रा इससे एक्यूरेट है। अब हम आगे आपको चार्ट के थ्रू दिखाएंगे कि ऑन चेन मैट्रिक्स पे जो हर्डल वेव्स है और MVRV स्कोर है उससे ये ट्रैक होती है और इससे हम कैसे बिटकॉइन और इसके साइकिल को फोरसी कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है ये MVRV स्कोर है। अब यहाँ से देखें, ये आपको ये बताता है कि जब भी ये टॉप इस जोन में आता है, मतलब ये MVRV जोन, तो वहाँ से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जब ये इधर आया तो देखें यहाँ पे ये हिट किया तो बेयरिश जोन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ हिट किया तो बेयरिश जोन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अब इस जोन में सिर्फ एंटर हुआ लेकिन फिर बेयरिश जोन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त करंट साइकिल में हमने यहाँ टच करना है, जो कि बहुत लॉन्गिंग डिस्टेंस अभी बाकी है। तो जो ही मतलब इसका मतलब है कि जो ही ये इस जोन में आ जाएगा तो आपने मार्केट से निकलना है। जो ही ये बॉटम आउट होता है, इस जोन में आता है, तो आपने मार्केट में बाय करना है। तो इससे आप परफेक्टली मार्केट का जो डिप है, बॉटम है और जो टॉप है वो मैयर कर सकते हैं कि कब इसका बेयर रन स्टार्ट होगा और कब बुलिश रन स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर आप एक और मेथोडोलॉजी को भी करते हैं जो 1 ईयर प्लस हर्डल वेव्स इसे कहते हैं, जो लोग जो 1 साल से बिटकॉइन होल्ड करते हैं उनका जब वो सेल करते हैं और जब वो बाय करते हैं तो आप उसी के थ्रू भी इसको मैयर कर सकते हैं कि टॉप क्या होगा और पीक क्या होगा। आप ये देख रहे हैं कि जब ये लोग सेल करते हैं तो मार्केट टॉप करता है, जब ये बाय करते हैं तो मार्केट बॉटम होता है, जब ये सेल करते हैं और हर पॉइंट पे हमें ये इसका जो अपोजिट नजर आ रहा है। जो रिटेल लोग हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, जब टॉप होता है वो बेच ले रहे होते हैं और जब बॉटम होते हैं तो बेच रहे होते हैं। इसके मुताबिक जो 1 ईयर प्लस होल्डर है वो ये समझ रहे थे उस साइकिल को, वो भी एक बेसिकली एक इंडिकेटर है कि वो आप इससे मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जो मार्केट में लिक्विडिटी आने का मतलब ये एक हार्बिंजर दे देता है कि मार्केट जो है ना प्राइस हो जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी मैटर कर रही है और लिवरेज पोजीशन भी, क्योंकि जब लिक्विडिटी आते हैं तो लोग लिवरेज लेना शुरू कर देते हैं अपने 10 मतलब 1000 रुपये पे वो 20x 30x ले, और फिर ये लिक्विडिटी मैग्नीफाइड हो जाती है। मतलब जितनी लिक्विडिटी होती है तो हमने बेयर रन और बेरिश, एक्सट्रीम बेरिश में और एक्सट्रीम बुल रन में हमने देखा है कि जो प्राइस एक्शन है क्रिप्टो मार्केट का वो डिकपल हो जाता है। डिकपल मतलब ये है कि जितनी लिक्विडिटी होती है उससे ज़्यादा मार्केट या अपर साइड पे चला जाता है या नीचे। उसकी वजह क्या है कि जब लिक्विडिटी आती है तो एक कॉन्फिडेंस लोगों के लिए चीज़ें ऊपर जाती है और फिर इसके बाद लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो लिवरेज लेते हैं थ्रू डीफाई और बैंक से लोन लेके वो फिर खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव है वो एक पार्ट बनता है और उससे मार्केट ऊपर चली जाती है। बिटकॉइन प्राइस और ग्लोबल M2 का अगर आप चार्ट देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो ही ग्लोबल M2 ऊपर जा रही है तो बिटकॉइन प्राइस भी ऊपर जा रही है, जो ही ग्लोबल मनी सप्लाई नीचे आ रही है तो बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आ रही है। तो यहाँ से भी ये कंफर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो लिवरेज पोजीशन और लिक्विडेशन की हमने बात की, तो आप ये देख रहे हैं कि पीक में जो 2021 पीक में था तो लोगों ने 20x लेवरेज लिया था। 20x का मतलब ये है कि अगर 1 रुपए की लिक्विडिटी थी तो मार्केट लोगों ने बाइंग की थी 20 की, क्योंकि वो लेवरेज ले चुकी थी। और फिर इसके बाद अगर आप देखें लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन उस पीक पे कितना हुआ, ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का। फिर हमने नवंबर 22 के टॉप में देखा तो जे के जो मार्केट बॉटम होता है तो इस वक्त लेवरेज भी कम है, लेवरेज ऑलमोस्ट 8x है, लेकिन जो लिक्विडेशन है वो भी कम है। इसी तरह हमने पीक में आपकी जो x है वो ज्यादा होता है और इसी तरह लिक्विडेशन भी कम होता है। हम कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी को कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसमें मेजर जो फैक्टर है वो सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक या तो क्वांटिटेटिव ईजनिंग से
या फिर इंटरेस्ट रेट से लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो लिक्विडिटी कम होती है सिस्टम में, अगर वो इंटरेस्ट रेट नीचे करता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। इसी तरह क्वांटिटेटिव ईजनिंग करता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, अगर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करता है तो लिक्विडिटी घटती है। फिर इसके बाद जो कमर्शियल बैंक है वो लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कि जब वो लोगों से बारो करते हैं और फिर लेंडिंग मैकेनिज्म वो कर लेंडिंग करते हैं तो समहाउ इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी सिस्टम में लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। वो इसकी वजह क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है वो पैसे दे रहे हैं। और थर्ड सोर्स जो है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज की या हेल्थ के सूरत में, जितनी ज्यादा वो करती है और जितने ज्यादा स्टिमुलस देती है तो इतने ज्यादा सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि लिक्विडिटी इससे भी बढ़ती है कि जब लोग ने जो एसेट लिया होता है और उसकी प्राइस बढ़ जाए तो वो एज ए कोलेटरल लग के, जैसे कि अगर आपने बिटकॉइन लिया हुआ है और वो टॉप पे पहुंचता है तो फिर आप उसको एज ए DeFi प्रोटोकॉल में कोलेटरल लग के मजीद आप जो है ना लोन लेते हैं और फिर इसकी वजह से मार्केट में ये लिक्विडिटी बढ़ती है। तो ये 4 फैक्टर है मेजर जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको वॉच करके आप लिक्विडिटी को काउंटर कर सकते हैं। जो हमने अभी बात की ये क्रिप्टो मैक्रो फैक्टर की बात की, कुछ क्रिप्टो स्पेसिफिक भी है। क्रिप्टो स्पेसिफिक फैक्टर क्या है कि आप जब स्टेबल कॉइन लेते हैं इथेरियम या फिर बिटकॉइन के अगेंस्ट तो वो क्रिप्टो स्पेसिफिक होती है कि मतलब वो भी एक लिक्विडिटी का काम करती है। इसमें जो इमर्जिंग सोर्स इस वक्त है वो XRP और ADA पे भी आप पहले आप सिर्फ BTC और इथेरियम पे कर सकते थे, अब XRP और ADA पे भी आप कर सकते हैं। रेगुलेटरी एनहेंसमेंट या जो इंस्टीट्यूशनल पेनिट्रेशन ज्यादा होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी। अब अगर आप ये देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल लिक्विडिटी में, इसमें सेंट्रल बैंक ऑलमोस्ट 50% है, 50% सेंट्रल बैंक की है, कमर्शियल बैंक की ऑलमोस्ट 30% है और इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो सबसे ज्यादा आप सेंट्रल बैंक, इसीलिए जो फेड पॉलिसी अनाउंस करता है तो मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो मेन सोर्स है लिक्विडिटी का। अब हम ये जो क्रिप्टो स्पेसिफिक लिक्विडिटी है ना, इसको अगर आप देख ले तो ये थ्रू स्टेबल कॉइन मैयर होती है कि कितना स्टेबल कॉइन मिंट हो रहा है चेन पे। तो आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ चेन्स है जिस पे स्टेबल कॉइन मिंट हो रहा है और इससे आप मैयर कर सकते हैं कि क्रिप्टो स्पेसिफिक लिक्विडिटी बढ़ रही है या घट रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया और उस चार्ट में भी एक्सप्लेन किया कि 2 लिक्विडिटी के जो 2 हर्डल वेव्स है और MRV स्कोर है, इससे आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट या बॉटम या जो टॉप है वो मैयर कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया इस चार्ट में कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब लिक्विडिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लिक्विडिटी अहम है? ये जितनी ज़्यादा होती है तो इतना आपको फेयर एक्सचेंज रेट मिलता है और ये जो स्लिपेज है, जो ट्रांजैक्शन कास्ट है, इसको भी घटाती है। ये ट्रेडर को अट्रैक्ट करती है, नेटवर्किंग इफेक्ट या वॉल्यूम को बढ़ा देती है, रिड्यूस मार्केट मैनिपुलेशन करती है और हाई लिक्विडिटी इंडिकेट हेल्थी एंड स्टेबल मार्केट। जितना मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ट्रेड होगी, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी, इतनी ज़्यादा जो है ना वो मैनिपुलेशन कम होगी और फेयर प्राइस लोगों को मिलेगी। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड मतलब ये कि आपने अब पूरी लिक्विडिटी का मैकेनिज्म हमने आपको समझाया, उसकी मैयर का भी। लिक्विडिटी किसी भी मार्केट के लिए क्रिटिकल है, मतलब लेकिन स्पेशली जो क्रिप्टो या इमर्जिंग मार्केट के लिए, क्योंकि इससे लिक्विडिटी तेज़ी के साथ निकलती है और तेज़ी के साथ आती है तो इसी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन भी आता है। तो ये बहुत अहम है, जितना ज़्यादा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी आएगी इतनी ज़्यादा लिक्विड कंबाइन लिक्विडिटी एंड ऑन चेन मैट्रिक्स और मुख्तलिफ चीज़ों को आप ऑन चेन और ऑफ चेन चीज़ें को आप मिला के आप लिक्विडिटी को मैयर कर सकते हैं। इसकी कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है लेकिन इससे आप परफेक्टली इसको कर सकते हैं और आप लेवरेज और साइकोलॉजी को भी मॉनिटर करके इसको मैयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह वीडियो मिस रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।